Welcome to SLD online class 6th standard general science. In my previous video I had explained you the half of the lesson and of this chapter. The chapter name is the living world. I had made there is a part 3. There are part 3. The explanation is divided into the part 3. Part 1 and part 2 you can see in my previous video. This is the part 3 that I am going to explain the useful things and the harmful things. What is harmful for living things and what are useful for living things. In our previous video we had learned about the respiration, excretion, reproduction, lifespan and cellular structure. Now we are going to read about the useful things and harmful things of living things. अभी मैं आपको ये चैप्टर का नाम है लिविंग थिंग वर्ल्ड और मैं आपको आधा लेसन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. वो भी डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में. फर्स्ट और 2 पार्ट में आप पूरा हाफ वीडियो देख सकते हो. अभी में 3rd पार्ट है इसमें मैं सिखाने वाली हूँ आपको यूज़फुल क्या ह्यूमन लिविंग थिंग्स के लिए अच्छा है और क्या हार्मफुल है, क्या हार्म कर सकता है, क्या यूज़फुल है. और हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं अबाउट रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन. ये सब हम लोग अपने लास्ट वीडियो में पढ़े. अभी नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द यूज़फुल थिंग्स. Plants are used for household as well as industrial purpose. For example, fenugreek, methi, potato, orca, bhendi, apple, banana are used as food, while vasaka, hirada, benda, asparagus are used as a medicine. See children, in our household, in our home only we can see methi. We use methi to eat if we have a stomach pain. Your parents will give first Ayurvedic medicine, a homemade medicine. If you have a cough, all that, first your parents will give what is there in our home, the homemade medicine they will give. Like that, we use many things there are many things useful for us. And see, apple, banana, what the apples do? Apple is good for our health. Banana is also good for our health. Eating one banana in the morning, it is good for our brain. And apple will pure your blood. Like that. And vasaka, herada, behada and asparagus are a medicine that are used for Ayurvedic medicine. Here you can see the picture of the vasaka that is known as adulsa. Okay, in Hindi we will call it as a Malabar seed. Another name it has that is Malabar seed. अभी आप यहाँ देख सकते हो हम अपने घर में मेथी यूज़ करते हैं, पोटैटो यूज़ करते, घर के थिंग्स भी यूज़ करते हैं हम लोग. बहुत सारे जो यूज़फुल थिंग है जैसे मेथी हुआ, मेथी हम लोग यूज़ करते फॉर स्टमक पेन, टू मेकिंग वेजिटेबल. सब पोटैटो यूज़ करते, भिंडी यूज़ करते हैं, एप्पल यूज़ करते, बनाना, ये सब हमारे खाने के लिए हम लोग अपने फूड में यूज़ करते. और वहीं पे देखो अदुल्सा को जो क्या कहते हैं, वसका को हम इसे मलाबार सीड करके बोलते हैं. हेरड़ा, भेड़ा और एस्पैरागस जो रहते हैं ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन है. ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन है. और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जैसे ये ब्लैक पेपर हुआ, लवंग, ये सब भी हम लोग कॉफ, कोल्ड, हर एक चीज़ के लिए यूज़ होता है. You have seen in your home that you can ask your parents also for what black pepper is used, black pepper, methi, all that. Okay, animals are also useful to us. Dogs, cat, cow, buffalo are kept for domestic uses. Fish, sheep, wolves are used as a food, while animals like horses, oxen, camel,
prove useful in various occupation. The earthworm is very useful in agriculture. What we see now, we saw the plants. What are the plants useful? Now we are going to see the animals. Animals is also useful to us. Many people has a domestic animals. They keeps a domestic animals like dog, cat, cow, buffalo. In a village we can see a cow, buffalo. They keeps in their home, and they dog is there. Dog, what the dog also look after. They are domestic animal. They keep in their home, and it is useful. What dog watch the home na? Yes, if thief is coming, it start barking like that. And cow, buffalo, if we will keep cow and buffalo as a domestic animal, cow and buffalo gives us the milk, and from milk, if the cow and buffalo we get that milk, from that milk we get a curd, from that curd we can give butter, from milk we will get the butter, ghee, all that. They are very useful for us. अभी सी चिल्ड्रन, आप लोग अभी प्लांट्स का देखिए, एनिमल्स का भी। आप प्लांट्स में क्या क्या हमें यूज़फुल है। अभी एनिमल्स में देखो, एनिमल्स कैसे हुआ, डॉग हुआ, कैट हुआ, काऊ हुआ, बफेलो हुआ। अभी हम लोग डॉग रखेंगे। डॉग क्या करता है, अपने हमारे घर को वॉच करता है। कोई भी चोर आता है, कोई भी अनजान इंसान अगर घर में घुसने के लिए कोशिश करता है, तो डॉग क्या करता है, बार्क करता है। और काऊ और बफेलो क्या करते हैं, काऊ और बफेलो जो हम रखते हैं घर पे, काऊ और बफेलो हमें मिल्क देते हैं, और मिल्क से हम लोग घी बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, बटर बनाते हैं, बहुत सारे यूज़फुल हैं थिंग्स हैं। एंड शीप, फिश, शीप, वुल्स आर, वुल्स मतलब क्या है, जो हेन सब रहते हैं ना, बर्ड्स जो रहते हैं, उसके यूज़ फॉर एज अ फूड। आप लोग खाते हो, बहुत लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, वैसे लोग खाते हैं। फिश ऑल्सो, फिश जो है, फिश मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ओके। और उसका फिश का ऑयल होता है। शीप जो है, शीप भी मिल्क देता है, हर एक चीज़। दे आर यूज एज अ फूड। वाइल एनिमल्स लाइक हॉर्स, oxen, camel prove useful in various purpose. What happened? See, horse, camel are used for in occupation. What they will do? They carry the load. In a old age, they were using the horse and camel, ox to carry the load to transportation. For the transportation, horse and camel were used. The earthworm is very useful in agriculture. What the earthworm do? It dig the hole in the agriculture. Agriculture में क्या करता है, मट्टी को जो रहता है वो प्रोटीन देता है। earthworm जो रहता है उसको मिक्स करता है होल कर करके, तो उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर को यूज़फुल होता है। यहाँ पे देखो, हॉर्स और कैमल क्या होता है, पहले के ज़माने में हॉर्स और कैमल को ऑक्यूपेशन में यूज़ करते थे। ऑक्यूपेशन में यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक विलेज से दूसरे विलेज जाना है तो हॉर्स और कैमल को लोग यूज़ करते थे। हॉर्स और कैमल को लेके जाते थे दूसरे विलेज, एक विलेज से दूसरे विलेज में। आपके शादी में देखो, कोई भी शादी भी करता है तो क्या करता है, लेके चल देता है ना, कार, बस, ऑल एयर ट्रांसपोर्टेशन निकल गया। लेकिन पहले के ज़माने में ये सब नहीं था, तो लोग हॉर्स को लेके जाते, हॉर्स पे दूल्हा बैठ के जाता था शादी करने की। ऐसे ही होता है, पहले के ज़माने में हॉर्स सब यूज़ होते थे, लेकिन अब के ज़माने में हम लोग क्या यूज़ करते, कार। पहले तो मोटर बाइक आया, अब तो कार आ गया। वैसे वो भी वैरायटी है कार चाहिए, आप लोग को नाम पता होगा। नाउ वी रेड द यूज़फुल थिंग। अभी जो हम पढ़े वो यूज़फुल थिंग्स है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हो हार्मफुल लिविंग थिंग्स है। हार्मफुल थिंग्स क्या है, जो हमें हार्म कर सकता है। Some animals and plants around us are harmful to man. For example, mosquitoes and flies spread diseases. Cockroach, mice, rat destroys our food. Lice, ticks also spread diseases. The bite of some poisonous lizards, spiders, snakes, and scorpions
can even causes death. If elephant enter human settlement, they causes a lot of destruction. See what are the harmful animals and plants. बहुत सारे प्लांट्स है, हार्मफुल प्लांट्स और एनिमल अपने आसपास. फॉर एग्जाम्पल मस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिसीज. व्हाट इज द मस्किटोज एंड फ्लाइज डू? मस्किटोज बाइट one person and it goes and bite another person. If the first person has any disease like malaria, dengue, that mosquitoes suck the blood of first person and go and bite the second person. He also get that disease. Like that only mosquitoes and flies also spread the disease. क्या होता है, आप मस्किटोस और फ्लाइज देखे हो. मस्किटोस अगर एक पर्सन को बाइट करता है, एक आदमी को बाइट करता है, उसको अगर मलेरिया डेंगू रहता है, अगर वो उसका ब्लड जो सक करके दूसरे इंसान को अगर वो काटता है, जो हेल्दी पर्सन है उसको काटने से क्या होता है, उसको भी मलेरिया डेंगू हो सकता है. अगर उसको पहले पर्सन को जिसको काट वो हेल्दी पर्सन को भी डिसीज हो सकता है. जैसे अभी किसी को भी मलेरिया डेंगू हुआ, अगर वो काट के दूसरे पर्सन उसके तीसरे पर्सन को वैसे स्प्रेड होता है. नाउ कॉकरोच, माइस, रैट डिस्ट्रॉय देयर फूड. व्हाट हैपन कॉकरोच? कॉकरोच कहीं से भी आया रहता है. Yes or no? It comes from anywhere. Mice and rat also, it comes from any in their legs. It will has a disease. If it eat the food, if you have kept the food openly, if it eats, that food also get destroyed. We cannot eat that food. क्या होता है, कॉकरोच, रैट, माइस क्या होता है, अगर वो कहीं से भी घूमते रहते हैं, क्या वो आपके जैसे स्लीपर सैंडल पहनते हैं? नहीं पहनते. तो कहीं से भी घूम के आते हैं वो लोग. ये नहीं कि आपकी जैसे जाके सोप साबुन लेते हैं और हाथ धोते हैं या पैर धोते हैं. कहीं से भी आते हैं और आपके खाने पर चलते हैं, तो खाना आपको नहीं खाना. आपको खाना खुला आपका है. अगर वो थोड़ा भी खा लिए तो खाना आपको नहीं खाना. अगर आप खा लिए तो उनके अंदर डिसीज़ रहता है, वो डिसीज़ कास हो सकता है. फिर देखो रैट खाता है तो हंटा वायरस आता है, बहुत पहले से ही. रैट से भी बहुत सारे वायरस फैलते हैं. कॉकरोच से भी बीमारी होता है, बुखार, सर्दी, खांसी सा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है. नाउ यू हैव अ पॉइजनस स्नेक, लिजर्ड्स एंड स्पाइडर एंड स्कॉर्पियोस. आपको बहुत सारे पॉइजनस स्नेक है, लिजर्ड्स है. पता है आप, इफ इट अ लिजर्ड बाइट अ पर्सन, देयर इज अ नो मेडिसिन. द लिजर्ड if it falls in a food also, then also if you will eat without seeing it, then also it is very poisonous, because the lizards, if it bites, for that there is a no medicine. For if a snakes bite, there is a medicine, but there will be a time limit. In that time limit you have to go and show the doctor, otherwise that person may die. And Scorpio is that for that also there is a medicine, but everything has the time limit. आपके आसपास बहुत सारे लिजर्ड्स है, स्नेक है, स्पाइडर है, इसका सब पॉइजनस है. अगर लिजर्ड अभी बाइट करता है उसका तो मेडिसिन नहीं है, वो पहले बाइट नहीं करता. बहुत लोग को ये नहीं पता है कि लिजर्ड भी बाइट करता है, लेकिन वो काटता है लिजर्ड, लेकिन जल्दी किसी को नहीं काटता है. और लिजर्ड के बॉडी पर ही जहर रहता है, उसके बॉडी तक आप लोग नहीं छूना चाहिए. स्नेक को भी बहुत पॉइजनस है. स्नेक भी बाइट करने से इंसान मर सकता है, लेकिन उसके लिए मेडिसिन है, लेकिन टाइम लिमिट है. अगर वो टाइम में नहीं गया वो मर सकता है. वैसे बहुत सारे पॉइजनस एनिमल्स आपके आसपास है. नाउ इफ़ वाइल्ड एलिफेंट एंटर home settlement, they cause a lot of destruction. What happened? A wild elephant. Wild elephant मतलब क्या? फॉरेस्ट में जो एलिफेंट रहता है. अगर वो एलिफेंट आपके होम सेटलमेंट आ गया, जैसे विलेज में आ गया, या आपका घर जो आस फॉरेस्ट के पास में है वहाँ आ गया, तो क्या हो सकता है, वो पूरा घर को डिस्ट्रॉय कर सकता है. Some plant too can be harmful, as for example the deodar,
प्लैटिनियंस एंड अदर वीड्स। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो हार्मफुल हैं, जैसे वो खुजली करने लगते हैं वैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे वीड्स हैं जो हमारे इट विल बी हार्मफुल। Spots of the nectar, colocasia leaf causes itching. Plants like Olendra lantana has strong odors. The dhatur plant is poisonous. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may causes the spread of diseases. What happened? There are many plants like colocasia leaf. If you will touch the colocasia leaf, if you will touch it from the finger and if you touch your skin, it causes itching. क्या होता है? कोलोकेशिया जो लीफ है, अगर आप उसको छू के अपने फिंगर हाथ से अगर आप कहीं अपने बॉडी पर टच कर दिए तो वहाँ पे क्या होता है? इचिंग, खुजली होने लगता है। इचिंग मतलब क्या है? खुजली, आपको खुजली होने लगता है। प्लांट्स लाइक ओलेंड्रा लैंटना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ओडर्स। क्या होता है? ओडर्स मतलब बहुत बैड स्मेल है, उससे आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है। और धतूरा प्लांट, it is a poison. Dhatura plant you can see here in the picture that has shown. धतूरा प्लांट क्या होता है? ऐसा जो यहाँ वाइट कलर का फ्लावर है, देखो धतूर फ्लावर है। आपको कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप धतूर प्लांट खाओगे, आपको पता है ना, फॉर लॉर्ड शिवा आप धतूर चढ़ाते हो, वही धतूरा है। ओके, वो धतूरा जो होता है क्या वो हार्मफुल है? अगर आप उसका लीफ भी खाओगे तो आपके जान को खतरा है, उसके लिए मेडिसिन नहीं है। सो वो एक जहर है। सी एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड एल्गे। फंगाई एंड एल्गे क्या है? व्हाट इज द फंगाई एंड एल्गे? यू कैन सी मोर इन अ रेनी सीजन। इफ अ वाटर हैज water, lake water, you can see a green color, you will call it as a pachi. That is only a fungi and algae. आप बारिश में देख सकते हो, कहीं भी जहाँ पानी जमा हो गया रहता है, बारिश का बहुत दिन का पानी हो गया, वहाँ क्या होता है? ग्रीन कलर जो हो जाता है, हरा कलर, एकदम पाची जो कलेक्ट हुआ रहता है, उसको ही फंगाई एंड एल्गे कहते हैं। उससे क्या होता है? उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखता है। वो क्या करता है? वाटर को पल्यूट करता है। तो उससे वो पल्यूट वाटर अगर कोई भी पी लिया गलती से तो क्या होता है? उसके अंदर डिसीज काज होता है। Till now we learned the useful and harmful of the living things. Now we are going to learn about the wild animals. Wild animals, you know what are the animals? Wild animals, the animals that live in the forest are called wild animals, that we cannot keep in your home, that are known as wild animals. Wild animals that hunt other animals for food are called predators. For example, tiger, lion, wolves, leopards. Sometimes due to deforestation, such animals enter human settlement in search of food and may kill domestic animals or people. You can see domestic animals, आपको पता है जो घर पे हम लोग रखते हैं उसको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, और जो एनिमल फॉरेस्ट में रहता है उसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो see, wild animals we cannot keep in your home. Why? It is harmful to us. It depend for their food on other animals. जो एनिमल दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए, क्या हम वो एनिमल को घर पे रख सकते हैं? इट हर्ट अदर एनिमल्स, वो हम लोग को भी खा सकता है। सो उसे ही हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं, और उसे हम लोग घर पे नहीं रख सकते। What are the wild animals? They have given the example like tiger, lions, wolves, leopards. ये सब क्या है? वाइल्ड एनिमल से क्या होते हैं? ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। और डिफॉरेस्टेशन के वजह से, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? द कटिंग ऑफ द ट्री।
अगर हम लोग डिफॉरेस्ट को ही नहीं रहने देंगे, फॉरेस्ट को जला देंगे, कट कर देंगे, तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वाइल्ड एनिमल ह्यूमन सेटलमेंट में आते हैं, फूड सर्च करने में आते हैं, तो क्या करते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी मार देते हैं और पीपल को भी मार सकते हैं। आप बहुत सारे न्यूज़ में देखो होगे, लियोप्राइड एक बार जंगल से विलेज में घुस गया था, तो एक बच्चे को उसने मार डाला। वैसे ही अगर हम लोग फॉरेस्ट को ही नहीं रहने देंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो क्या होगा, वाइल्ड एनिमल तो विलेज में आएंगे ही, वो लोग फॉरेस्ट छोड़ के आएंगे ही। तो नाउ I think now you have understand the useful and harmful of the living things and the what is wild animals and how they harm the human life. Human life को they will not harm first, the human being harm them, then the wild animals harms the human being. Why? If we will do the deforestation, they will come and harm us. Here I have finished the second chapter, the living world. In this chapter we have learned the growth, respiration, extinction, reproduction, stimuli, movement, lifespans and cellular structure and the characteristics of the living things we have learned here, and the harmful and useful things that are present in the world and about the wild animals. Thank you.